Very good afternoon, everyone. I welcome you back in the e-learning program again. As you all know what the current situation is, so looking into the situation, we have decided not to invite you in the school, but instead we will continue with our online learning. As you know that I am going to take your CC and SP subject. The subject is being divided into two parts, right? The first one is CC, that is commercial correspondence, where you will learn how the commercial correspondence takes place. In the very first chapter of your 11th standard, you have learned what is correspondence and what is business correspondence, right? So you know the difference. Another part is SP, that is secretarial practice, where you will learn that what role does a secretary plays while the company goes, right? In the 11th standard also you have learned the basic role, that what qualification, what qualities a person who is going to apply for a CS needs to have. Now here you will learn the main task of the CS, right? You will learn that when the company issues the shares or when the company conducts some meetings, and whatever company does, what role a CS has to play in the company, that you will learn in this part. This subject, as per your 12th standard, is divided into two parts. Marks wise it is divided as in the CC part will take 40% of weightage and SP will be taking 60%. Means 60 marks ka SP ka portion aayega and CC ka will be 40 marks. So note it down in your book that 40% CC and 60% is going to be your SP, right? So more weightage is given on SP, right? 60% and CC 40. All right, today we are going to start with the part 2, that is secretarial practice. All right, in that the name of chapter is issue of shares. Now come to page number 85 in your book, that says chapter number 1, issue of shares. Now the question comes, ma'am, who can issue the share, what is shares, and who can issue in which places the shares are being issued. So all these questions comes when we see this thing, right? So first of all you need to know that whosoever wants to run a business, right? अगर हमको business करना चाहिए, जो पहली चीज़ चाहिए होती है, that is our idea, that what idea we are going to pursue. सेकेंडली अभी वो आइडिया फ्री में तो होगी नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू वुड नीड मनी, राइट? फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी. So when it comes to sole proprietorship or the partnership firms, so they bring their own money, and they start doing the business. But when they want to explore their business, when they want to expand their business, they convert themselves into the companies that we have learned in the 11th standard also. Formation of the company, that you have learnt in your OC also. In the last chapters I think you have learnt that how the company is being formed. But when it comes to public company, they invite so many of the people to take part in the shares, right? They can purchase the share capital, they can purchase the shares and be part of the ownership of the company. In the last year also, so many of you have given me the presentation also about the prospectus. So you know it well that if the company wants to issue the shares, they need to issue a prospectus, right? Prospectus is the invitation to buy the shares, and many of you have presented the prospectus in the class itself, which I really remember, and I really appreciate all those kids who came on the stage and presented themselves, right? So today issue of shares that we are going to start. Now how the shares will be issued, so all the procedures are being discussed here. So one by one we all will be reading the lesson, and remember one thing, when you watch the video, your textbook should be always with you, the pencil or the pen or the something which you need to mark, okay? It's not necessary that I will tell you that mark these things. It's up to you also, right? That whatever you find it important, you should mark it on your own also, and whatever I'll say that you will mark only, but whatever you find it important, that this is something that I need to pay attention on, so that also you need to make a mark, okay? So I'll read along with me, you also have to read so that it can be done. So let's start with the introduction part, that what does it say? A public company invites general public to subscribe to its shares by invitation through the prospectus.
First of all, who can invite the public to issue the shares? It's only public company can invite the public to get the shares. Now how would they invite? They will invite through the prospectus. I think prospectus, you know it pretty well, so I won't be going in deep in that. The company also issues securities through private placement. Even the private placement के थ्रू भी securities को sell करा जाता है. जैसे किसी institutes को, foreign institutes को के एक quota वो रख देते हैं कि जैसे 100 crores they want to issue, तो they will keep 40 crores or 60 crores for the private placement. Like they will consider some private institutes and they will be asking them to buy the shares. And this is something a privilege companies we can say they can be considered कि उनकी एक ऐसी अच्छी market value होती है कि private placements भी हो सकते हैं. Okay, then in addition to this, shares are also issued by the company through right shares and bonus shares. Some of the right shares are given and the bonus shares also to the current shareholders. जो already members हैं उनको ही right shares and bonus shares are being issued. These things you will learn in detail again in the next chapters also. It is necessary for company to fulfill the provision of Security Contract Regulation Act 1956 and the Companies Act 2013 and guidelines issued by Security Exchange Board of India under the Security Exchange Board of India Act 1992 for the public issue of shares and other securities in India. These are the basic acts, basic laws that a company secretary has to learn. In the paper also, if you remember your 11th standard paper, the question was being asked that what laws a company secretary has to learn if he want to become a CS of the company. So in that, these were the laws, right? The Companies Act, Companies Contract Acts and the Security Exchange Board of India Act. तो ये सारे जो एक्ट्स है वो सारे एक्ट्स उसको थॉरली आने चाहिए. अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको कंपनी लॉ का कोई भी प्रोविजन आधी रात को भी उठा के उसके बोले तो उसको आना चाहिए, राइट. एंड इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल लॉ कि उसको समझ को ईजीली कोई भी लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट. नो, इट्स नॉट एट ऑल ईजी एट ऑल. But if somebody who is really educated, somebody who is really wise person can only understand the Companies Act. Even each and every provision, each and every article, each and every line I would say has its own meaning. उसको तुमको अच्छे से interpret करना पड़ता है तब जाके तुम वो law समझ पाते हो. It's not that कि कोई भी हमने चीज़ read कर ली और उसको समझ लिया. No, it's very deep. So you need to understand these laws a lot. कि वो 3-4 साल का कोर्स होता है और उसको भी clear करना is not that easy. सब कोई उसको नहीं clear कर सकता. It really needs hard work. It really needs attention to be given on, then only you will be able to clear it off. Alright, so these are the basic laws a company secretary must be aware of. उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी उसको आएगा, ठीक है. Then these are public issue of shares and other securities in India. Thus, public company raises share capital through public issue, rights issue, bonus issue and private प्लेसमेंट. ये 4 तरीके के इश्यूज़ है. पब्लिक इशू क्या होता है कि जो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है. द प्रॉस्पेक्टस, जैसे लास्ट ईयर तुम लोग भी प्रॉस्पेक्टस बना के आए थे, प्रेजेंट किया था तुम लोगों ने, राइट. सो सेम वे ऐसे ही वो पब्लिक को इशू करता है कि जिसमें वो अट्रैक्ट करते हैं छोटे इन्वेस्टर्स को. दे आर नॉट सो बिग इन्वेस्टर्स. उनका इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक 14-15,000 IPO के थ्रू में वो इशू करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक इशू, राइट. कि जो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए ताकि वो भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो, वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न करे. तो पर्पज़ यही है कि सबको, पूरे कंट्री को यूनाइट करना है, पूरे कंट्री को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोवोक करना है, उनको अप्रिशिएट करना है. तो ऑन दैट बेस दे डू द पब्लिक इशू. Then rights issue are given to the existing shareholders itself. Then bonus issue कि कंपनी कई बार क्या करती है, उनको प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड के बदले वो कई बार क्या इशू कर देती है, बोनस शेयर इशू करती है टू अप्रिशिएट देयर ओन शेयर होल्डर्स. जो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको ही बढ़ावा देने के लिए बोनस शेयर्स भी इशू
करे जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट प्राइवेट प्लेसमेंट, एज आई टोल्ड यू कि प्राइवेट प्लेसमेंट इज बीइंग डन फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कि उनको ही कुछ परसेंट वो रिजर्व रखती है कि इतना हमारा जो भी इशू है, सपोज 100 करोड़ का शेयर इशू हो रहा है, तो एज आई टोल्ड यू कि फ्यू परसेंटेज और फ्यू करोड़ दे विल बी कीपिंग फॉर देम, कि वही लोग उसको ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट. So along with this initial public offer, that is IPO, that they can ask you what is the full form of IPO, initial public offer, existing shareholders can also offer part of their holding to general sale. कि सपोज के ये प्राइवेट कंपनी थी और ये डायरेक्टर्स की थी कैपिटल थी, तो अभी दे वांट टू इन्वॉल्व द पब्लिक ऑल्सो, तो दे कैन गिव देयर होल्डिंग्स टू द पब्लिक, कि चलो अभी ये मेरे भी जो शेयर्स हैं, आई एम इन्वाइटिंग पब्लिक ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ दिस. Okay, through in general public through the prospectus by taking permission of board of directors, पर उसके लिए उसको board of directors की permission compulsorily लेनी पड़ेगी. If they are allowing, then only they can invite the public. This is called offer for sale. इसको बोलते हैं offer for sale. Offer for sale की definition आ सकती है, so mark it down that this is the definition of offer for sale. So offer for sale we did. Then after, what is written here, that the prospectus is kind of notice, circular, advertisement or any other document through which the company invites the public to subscribe its capital. Okay, prospectus is nothing but a invitation to the public. जैसे कि तुम लोग भी लास्ट ईयर सब लोगों ने प्रिपेयर करके आए थे prospectus, और तुमने भी क्लास में जैसे प्रेजेंटेशन दिया था, so you know all that what the prospectus is, right? So it's just a invitation to public कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, आप लेने आओ, ठीक है. So this is something like that. Then moving ahead, the company takes helps of various intermediaries. अभी जब कंपनी को इशू करना होता है कि ये कोई आसान बात नहीं होती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट इन इशूइंग द शेयर्स टू पब्लिक इज़ नॉट दैट ईजी टास्क, यू नो, कि ये कोई इतना आसान टास्क नहीं है कि आज मैं जाके कहीं पे भी खड़ी हो जाऊँ और बोलूँ कि चलो मुझे 100 करोड़ के शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक को. तो इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज उसमें सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, तो उसका कंसर्न गवर्नमेंट को है, राइट. वो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको पूरा कंसर्न है, रजिस्टर ऑफ कंपनी है, उसको पूरा कंसर्न है कि क्या है, यू नो, कि ये इशू से कितना अफेक्ट हो रहा है जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं. सो दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देम. सो दैट्स वाई देयर आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स इन द लॉ, कि वो इशू करने के लिए बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि कायदे कानून लगे पड़े हैं कि जिसको उनको फॉलो करना है. सो अभी ये अकेले कंपनी से सिर्फ नहीं होता है, उसके लिए देयर आर सर्टेन there are certain institutes are there, certain people are intermediaries जिसको हम बोल रहे हैं involved, so that the work can be done smoothly. So which are these intermediaries which will be helping to issue the shares of the company? They are lead managers, registrar, transfer agent, bankers to the issue, underwriter, depository, credit rating agency. सी अगर कोई भी कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं ना, तो उसको सबसे पहला जो स्टेप तुमको आने वाला है वो है कि उनको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा. आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, राइट, कि जो आसबा का अकाउंट है मिनिमम, मतलब एक कोई भी तुमको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. कोई रजिस्टर्ड बैंक होनी चाहिए, ऐसे ही कोई भी बैंक खोल के बैठेंगे वो भी नहीं चलेगा. सो एक कोई रजिस्टर्ड बैंक होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड बैंक होनी चाहिए, कि जिसमें उनको एक बैंक अकाउंट कंपनी के नाम का खुलवाना पड़ेगा. सो दीज बैंकर्स टू इशूज़ आर इम्पॉर्टेंट, दैट व्हाट बैंक यू यूज बीइंग कंसर्न. देन देर आर अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स क्या होते हैं अभी, कि एज वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल्दो कि अंडरराइटर्स क्या होते हैं, बट दिस इज जस्ट टू रिकॉल दैट अंडरराइटर्स आर द पीपल कि अगर सपोज हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है. अगर मैं 100 करोड़ इशू कर रही हूँ तो मुझे 90 करोड़ तो मिनिमम आनी चाहिए, तो ही मेरा इशू वैलिड है, अदरवाइज मैं कंपनी को शेयर्स इशू नहीं कर सकती. समझ में आया? सो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो फिर मेरी जो इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ इशू लाने की, वो सारी क्या जाएगी, वेस्ट चली जाएगी. सो दैट्स वाई व्हाट दे डू, दे अपॉइंट सम अंडरराइटर्स. अब ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जिनके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, कि जिनका काम ही है लोगों को फाइनेंस करना. पर वो फाइनेंस किसको करते हैं,
द वन हु आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर दैट, कि उसमें जिनको उनको फ़ायदा लगता है वो, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो अपने पैसे ऐसे ही किसी को दे देगा, ठीक है। तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं कि कंपनी की गारंटी लेते हैं कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो बाकी के जो अमाउंट है जो तुमको नहीं मिली है वो मैं ले लूँगा। सपोज 100 करोड़ कि जैसे इशू हुआ, राइट, तो अगर मेरा सब्सक्रिप्शन आया लोगों से 70%, तो बाकी का जो भी अमाउंट बाकी है मेरा 70 करोड़ से बाकी का अमाउंट, तो दैट अमाउंट के शेयर जो होंगे दैट विल बी टेकन बाय द अंडर राइटर्स। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे कोई भी तुम प्रोडक्ट भी लेते हो ना कि तो तुम उसके रिव्यूज़ लिखते हो। अमेज़ॉन से हम लोग कुछ मंगवाते हैं, मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया, तो हम लोग क्या करते हैं उसके स्टार्स की रेटिंग देते हैं। स्टार्स की रेटिंग क्यों देते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट कैसा है। हम लोग उस पर कमेंट्स लिखते हैं, हम लोग प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा नहीं होता है उसके बारे में बुरा भी लिखते हैं। सेम वे ये तो सिर्फ 1000 का भी 50 रुपये का भी प्रोडक्ट होता है ना, तो उसके ऊपर रेटिंग्स होती है, राइट। सेम वे अगर ये जो इतनी बड़ी जो शेयर की कंपनी है, राइट, तो इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो इतने ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो कंपनी के परफॉर्मेंस से, कंपनी के जो भी बिहेवियर है, बिहेवियर इन द सेंस कि जैसा उसके ट्रांजैक्शन चल रहे हैं या कंपनी का जैसे इम्प्रेशन है, जैसे उसकी डेट्स है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी कैपिटल है, उसका पोटेंशियल है, उसको मेज़र करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो कंपनी के बिजनेस को रेट करती है कि वो कितना रेटिंग है। इवन यू कैन हैव ओन क्रेडिट रेटिंग स्कोर कि आप सपोज आपने कहीं से लोन लिया है तो आप कितने रेगुलर उसमें इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो उसके बेस से आपकी एक क्रेडिट क्रिएट होती है, आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। सो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी नो शेयर इशू में बहुत हेल्पफुल रहती है कि कोई भी होगा ना तो उसके क्रेडिट रेटिंग देखेगा कि ये कंपनी का जो इशू है उसका क्रेडिट रेटिंग कितना आया, तो उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि हम लोग भी जैसे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो भी हम लोग स्टार्स देखते हैं कि हम देखते हैं ना उसमें सबने उसको 2 स्टार 3 स्टार ही दिया, हम लोग देखेंगे ही नहीं वो प्रोडक्ट। बट अगर हम लोग देखेंगे 4.5 है, 4.3 है, तो वी प्रिफर कि नहीं चलो ये प्रोडक्ट लेने जैसी है। सो वी रियली रिलाई ऑन अदर्स अदर्स एडवाइस कि अगर जैसे जिसने कोई चीज़ पहले यूज़ कर चुकी है, अपने कोई फ्रेंड से भी कितने पूछते हैं कि देखो ये तूने लिया था अच्छा आया था तो मैं भी यही ऑर्डर करूं या मैं भी यही लूँ। सो दिस ओपिनियंस आर एक्चुअली रियली इम्पॉर्टेंट। सो ये तो इतने ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है तो हम पैसे तो भाई किसी को फ्री में देते नहीं है, किसी को ऐसे ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट to know what is the credit rating of it. Depositories are the organization के जैसे कंपनी होती है ना, तो ये इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो पूरा मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाती है, तो कंपनी का ये काम बिजनेस से ज़्यादा तो इसमें ही चला जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, डिपॉजिटरीज को अपॉइंट करते हैं जो इंटरमीडिएट होती है कि जो भी शेयर्स लेते हैं तो उनके लिस्ट डिपॉजिटरीज के पास होते हैं। सपोज यू आर द मेंबर ऑफ रिलायंस, तो आपका नाम रिलायंस वालों के पास नहीं है, आपका नाम रिलायंस की जो डिपॉजिटरी है उसके पास रहेगा। ओके, सो दीज आर द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर योर शेयर्स विल बी रजिस्टर्ड, कि ये जहाँ पे आपके शेयर्स रजिस्टर होंगे। बीएससी में रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो ये किस में रजिस्टर हो रहे हैं आपके शेयर्स, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा, वो सब कुछ आपको जान लेना है। एंड दीज आर द पीपल हु आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स। व्हाई वुड दे बी डूइंग इट? It takes the help of these institutes. Why it takes the help of these institutes? To complete the entire process of public issue. As I told you, it takes a lot of time, it takes a lot of efforts to issue the shares. ओके, सो इतना सब करना है तो ये सारे जो भी मैंने एजेंसीज बोली, जो भी डिपॉजिटरीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, सबकी हेल्प चाहिए होगी, तब जाके हम लोग एक शेयर्स को इशू कर सकते हैं। The company secretary initiates the process of issuing security with the help of these
intermediaries by fulfilling the provision of prevailing लॉस, जो लॉस प्रिवेलिंग चल रहे हैं, जो करंट लॉस चल रहे हैं, उन सबको फॉलो करके ये इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेके तुमको एग्जाम में आ सकता है दैट विच आर दीज इंटरमीडिएटरीज. सो यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट आर दीज इंटरमीडिएटरीज. तो तुमको एटलीस्ट अगर 2 मार्क में है तो तुम 5-6 तो नाम एटलीस्ट तुमको लिखने ही है, तब जाके तुमको फुल मार्क्स आएंगे. सो नेवर एवर दैट थिंक दैट कि ये अगर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो हम उसको जाने देंगे. ऑलराइट, सो these names of intermediaries are something that you need to learn it. It can be asked in your exam. And one more thing that you need to mark it down, that in your exam, in your board paper I am talking about, there will be from this chapter 11 mark is the weightage. Okay, 11 marks का ये chapter में से आएगा. Okay, there will be one MCQ and then there will be one VSQ, that is very short question. Then short question, that is SQ, that will be 1 mark and one of 2 marks. Then even 3 mark का भी एक question आएगा. 3 marks 1 question, 2 marks 1 question. So it's 1 plus 1 2 plus 2 4, 4 plus 3 7. Okay, then again 4 mark का भी एक question आएगा. 4 mark का भी एक question आएगा. Okay, so all together it the weightage of this chapter, okay, lesson number 1 part 2, its weightage is 11 marks. Okay, so make sure that you just do revise very well this chapter because it takes 11 marks. So 2 मार्क के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, 4 मार्क के भी आ सकते हैं. 11th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने ऐसा देख लिया कि चलो मोस्टली एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज, बट नाउ एनीथिंग कैन कम इवन फ्रॉम लेसन इनसाइड. सो डोंट अंडर एस्टिमेट कि ये तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में था ही नहीं मैम, आपने एग्जाम में पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होने वाला है. चैप्टर पूरा अच्छे से रीड करना पड़ेगा तो ही आएगा. सो इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड. जो तुमको 2 मार्क में था वो शायद 3 मार्क में भी पूछे, 3 मार्क वाला 2 मार्क्स में भी आ सकता है या 1 मार्क में भी कन्वर्ट कर दे. सो एवरीथिंग यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल बाय योर माइंड कि कुछ भी कहीं पे भी आ सकता है. फर्स्ट चैप्टर में जो चीज़ होगी वही सेम टॉपिक हो सकता है कि 3rd में भी आए, तो वो कंबाइन करके भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. सो नाउ व्हेन यू आर इनटू 12th स्टैंडर्ड, मेक योर माइंड प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, and don't ever think that the subject is hard. It's very nicely, if you will just understand it, you can get full marks also very easily. So very positively we need to take it. After obtaining sanction of prospectus from SEBI, the procedure of public issue can be divided into 2 parts. ओके, अभी जैसे उनको सेबी का अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद ये ये जो इशू होता है उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशंस. पहले क्या होता है कि प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, कि जो शेयर एप्लीकेशन हमने इशू करी है, ओके, वो हम कैसे इशू करेंगे, ये सारी प्रोसीजर, रजिस्टर कैसे करना है और किस किस इन्वेस्टर्स को हमको इनवाइट करना है एंड ऑल दैट. सेकेंड पार्ट इज़, अभी इतनी सारी एप्लीकेशन तो आ गई, जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर ऑल्सो, लक्ष्मी और ये सब ऑर्गेनिक और इतने सारे हमने प्रॉस्पेक्टस डिस्कस किए थे. तो तुम लोगों ने देखा था कि कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है. 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो मतलब भूल जाओ, 50 टाइम 100 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आता है. 100 करोड़ इशू करते हैं तो उनको 100 का 100 इंटू 100 10,000 करोड़ दे आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन. तो अभी वो 10,000 करोड़ की एप्लीकेशन आई तो उनमें से अलॉट किसको करेंगे, तो उसके भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए कि हाउ वुड यू अलॉट द शेयर्स. और जिनको शेयर नहीं मिले तो उनको तुरंत पैसे भी तुमको रिटर्न करने, अगर 30 डेज से ज़्यादा रखोगे पैसे तुम्हारे पास तो उसका भी तुमको पेनल्टी आएगा. तो दैट ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड. किसी का भी पैसा हम ऐसे नहीं रख सकते. एज आई टोल्ड यू, IPO जब भी होगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट होती है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है. सो नेवरदलेस फील दैट एनी such thing can be continued. So we really need to be careful. So allotment of the shares कैसे होगा, तो उसके भी standards, उसकी भी जो procedure है वो भी सेबी ने दी है और उसके according ही वो चीज़ होनी चाहिए.
राइट। सो फर्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। अभी जब प्रोसीजर तुमको बोली है तो याद रखना जो भी पॉइंट्स है वो 1 by 1 ही आने चाहिए, कि फर्स्ट पॉइंट है तो वो फर्स्ट ही रहना चाहिए, सेकंड है तो वो सेकंड ही रहना चाहिए, थर्ड है तो थर्ड ही रहना चाहिए। फर्स्ट वाला हम बाद में लिखते हैं और थर्ड वाला पहले लिख देते हैं, नहीं चलेगा। सो प्रोसीजर होती है 1 by 1 होती है और उसको फॉलो करना ही रहेगा। और मोर इम्पॉर्टेंट कि जब भी प्रोसीजर आए ना तो ट्राई करो कि उसको ड्रॉ करो। जैसे तुमने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन की प्रोसेस आई थी, राइट, तो हमने कैसे उसको ड्रॉ करा था, उसका चार्ट बनाया था। सेम वे whenever you see there is process or something like that, तो उसको ड्रॉ करने की आदत बना दो, सर्कुलर फॉर्म में एरोज बनाओ, कुछ भी करके उसको अपने क्रिएटिविटी दिखाओ, एंड दैट वे यू प्रेजेंट योर आंसर एंड दैट विल गिव यू रियली अ गुड इम्पैक्ट। कि जो पेपर चेकर होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अपना, कि तो अपने को भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि जो हमेशा जब पेपर लिख रहे हो तो रीडर के पर्सपेक्टिव से लिखो, कि रीडर तुम अगर पेपर चेक कर रहे होते, तुम्हारे पास भी हज़ारों के बंडल है, जब बोर्ड का पेपर जाएंगे तो हज़ारों के बंडल्स होते हैं उनके पास, तो उन हज़ारों में से तुम्हारा पेपर कैसे अच्छा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो दैट इज़ ऑन यू। ओके, तो वो क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो अभी से ही अगर प्रिपेयर करते जाओगे, अभी से ही ये चीज़ें दिमाग में रखोगे, तब जाके तुम बोर्ड में वो चीज़ प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है। सो फर्स्ट देयर आर 4 स्टेप्स बेसिकली। फर्स्ट इज ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। सबसे पहली जो चीज़ करनी पड़ेगी वो हमको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशंस आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, एंड देन शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर allotment. So basically it's divided into 4 parts. Make sure कि चारों parts, 4 steps है उसके, चारों line wise ही आए। Okay, first is opening of an bank account. So what it is says, let's read it. When I'm reading, make sure that you will also be reading. It's not like that सुनना ही है, सिर्फ साथ में read भी करो। Bankers to the issue are appointed by a company to make all transactions related to the इशू ऑफ शेयर्स। ओके, पहले तो जो भी होगा कि सब वो क्या करते हैं, हर एक बैंक से मिलते हैं। हर एक बैंक इन द सेंस कि जो कंसिडरेबल बैंक लगता है उनको, कि जो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वैसे बैंकर्स से वो लोग मिलते हैं। ओके, और उनको अपॉइंट करते हैं कि चलो मैंने ये एक्सिस बैंक चुना, या मैंने HDFC चुना, या मैंने दिस SBI बैंक चुना। सो दैट इज़ अप टू देम कि वो कोई भी एक ऑथोराइज बैंक को चुनेंगे और उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। द कंपनी कैन ओपन एन करंट अकाउंट इन एनी स्केड्यूल्ड बैंक फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स। ओके, कंपनी कैन ओपन एन करंट अकाउंट। देखो ये छोटी छोटी बातें बहुत आएंगी तुम्हारे MCQs में। करंट अकाउंट खुलवाना है इन एनी स्केड्यूल्ड बैंक। ओके, दैट ऑल्सो यू पुट इट अंडरलाइन, स्केड्यूल्ड बैंक। इट कैन बी तुमको ऑप्शंस वैसे आएंगी कि गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक इज समथिंग इज टू बी रिटन। Okay, special account with the bankers to issue. Okay, for the purpose of public issue, the company opens a special bank account with bankers to issue, which is known as escrow bank account. Okay, what it is called? Escrow bank account. Remember the word escrow bank account, it is called a special account. क्यों खुलता है ये account? Just to get the application from the investors. This account is opened by presenting a copy of resolution passed in meeting of board of director regarding the opening account along with other documents. जैसे अपने कैसे जाते हैं तो अपने से क्या मांगते हैं? That whenever you will go to any of the bank and you say that I want to get my account opened in your bank, that पहले तुमको बोलेंगे ये हमारा फॉर्म है। Along with this form, you need to find your identity cards and your address proof and your passport size photo and everything. So जैसे अपने से वो लोग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सेम वे जब उनको एस्क्रो अकाउंट खुलवाना है कंपनी को, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक बैंक अकाउंट, वो भी उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। सो बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो लेंगे कि कंपनी कब रजिस्टर हुई, क्या हुई, कंपनी का प्रूफ दो, ये सब चीज़ें तो लेंगे ही। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे विल आस्क for escrow account would be the resolution which is being passed in board of directors meeting. कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया है कि हाँ हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं,
और हमको उस शेयर इशू के लिए हमको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो दैट शोज़ कि सारे बैंक सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हमको ये आपके बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट कि बैंक के पास भी एक अश्योरिटी रहेगी, क्योंकि देखो कंपनी में कोई एक बंदे को हम लोग ऐसे अकाउंटेबल नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं, सारे अकाउंटेबल हैं। So that's why उनका consent is really needed, and that's why that's why they need to open an account in the scheduled bank, and that's why they need the bank resolution. Okay, so, sorry, board of directors special resolution to be filed with. That shows the authority that yes कि जो भी ये account खुलवा रहे हैं authorized person खुलवा रहे हैं. Okay. Afterwards, while opening an account, company assures that the share application money will be deposited in this account, and the total amount including share capital and premium, if the shares are issued at premium, will be transferred to company's account only after completion of the process of share allotment. ये सारे जो अमाउंट होगा, ये सारा जब भी कंप्लीट हो जाएगा अलॉटमेंट, ये सब कुछ कंपनी के अकाउंट में सेव रहेगा after following all the guidelines, after following all these procedures. Okay, as per the latest and yeah, one more thing, that company's shares can be issued on the प्रीमियम, उनके शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। जैसे तुम लोग देखते हो उसकी वैल्यूज़ जो है तो फेस वैल्यू तो बहुत कम होती है, राइट। आगे जो भी उनका अमाउंट होता है ना, एक्चुअली तो वो उनका प्रीमियम ही होता है कि जिसकी कंपनी की वैल्यूज़ बढ़ती है, राइट। सो प्रीमियम ऑन शेयर्स इज रियली समथिंग दैट इज समथिंग द प्रॉफिट दैट द पर्सन कैन अर्न। सो ये सारा जो भी अमाउंट आएगा, कैपिटल, उसकी फेस वैल्यू का, उसकी जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा, वो सब कुछ, ओके, दैट एवरीथिंग इज बीइंग डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट, ओके। एंड afterward, as per the latest guidelines of SEBI, which is being issued on 1st of January 2016, share application can be made only through ASBA. Okay, जो एप्लीकेशन होगी, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो अबाउट ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, कि वो क्या होता है कि ये जो भी अमाउंट होगा ये कौन से अकाउंट में जाता है, जाता है एस्क्रो अकाउंट में, पर वो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो सपोर्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि ये जब तक, जैसे कि आज उसका इशू हुआ, राइट, कि आज की डेट से उनका अमाउंट उसमें बैंक में आया, राइट। तो जब तक उनका अलॉटमेंट होता है तो ना वो पैसे इन्वेस्टर यूज़ कर सकता है, ना ही वो कंपनी यूज़ कर सकती है। वो अमाउंट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द ASBA अकाउंट, राइट, कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट, वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, राइट, कोई भी उसको यूज़ कर सकता नहीं है। ऑलराइट, देन अकॉर्डिंग टू ASBA procedure, the share application money is blocked by the bank where the applicants hold his account. तो वो अमाउंट ASBA भी कहाँ लग जाता है कि वो बैंक के अकाउंट में नहीं, जो कंपनी ने की स्केड्यूल बैंक है, जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें नहीं लगेगा, वो तुम्हारे ही अकाउंट में ASBA लगेगा। मतलब तुम्हारा जो अकाउंट में बैंक है, कंपनी तुमको ऐसे नहीं बोलेगी चलो कि मेरे शेयर्स देने तो तुम इस बैंक में अकाउंट खुलाओ, नो, दैट इज़ नॉट वैलिड दीज डेज, ओके। यहाँ अभी तो आजकल तो ऑनलाइन ही हम लोग ले सकते हैं, IPO ले सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे अकाउंट का ही पैसा रहेगा उसी अकाउंट में, तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम्हारे ही अकाउंट में रहेंगे, पर वो अमाउंट तुम यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता। जैसे ही अगर शेयर्स अलॉट हुए तुमको, अगर सपोज तुमने IPO भरा है, राइट, तो आज तुमने IPO भरा, मतलब तुम्हारा 15,000 जितना अमाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। सपोज तुमको शेयर्स अलॉट हुए तो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। पर अगर सपोज तुम्हारा नहीं अलॉट नहीं हुआ है तुमको शेयर्स, तो क्या होंगे कि 1-2 दिन में, जितना उनका प्रोसीजर होता है, मैक्सिमम इट टेक्स 2 days, सो द अमाउंट विल बी रिलीज्ड अगेन इन योर अकाउंट। नाउ यू कैन यूज़ योर अमाउंट विच इज़ बीइंग ब्लॉक्ड, ओके। तो जो चीज़ें ब्लॉक हो गई थी अब आप फिर से उसको अमाउंट यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टूड? मूविंग अहेड, according to the ASBA procedure, the share application money is blocked by the bank where the application holds its account.
The money remains blocked till the share allotment is done. As I told you, the money will be remain blocked जब तक तुमको share allot होते हैं. And the application money is transferred to company's account. अगर तुमको allot हो गए तो वो company के account में चले जाएंगे जो उसका escrow account था उसमें, okay? और नहीं हुए तो वो तुम्हारे ही पैसे तुमको ही मिल जाएंगे. Okay, as soon as the allotment of share is done, the amount of share allotted is transferred from bank account of applicant to the bank account of the company. जैसे ही शेयर हुए तो तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में से और पहुंच जाएंगे कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में जो स्केड्यूल्ड बैंक में खुलाया है करंट अकाउंट. ये सारी चीज़ें मार्क करना, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि क्या कि कौन सा बैंक होना चाहिए, तो स्केड्यूल्ड बैंक होना चाहिए. कौन सा अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए. वो अकाउंट को क्या बोलते हैं, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं. सो दीज आर द थिंग्स कि ये तुमको पूछे जा सकते हैं, तो कीप दैट इन योर माइंड वेरी वेल. ओके, सो as soon as the allotment of share is done, the amount of share allotted is transferred from bank account of applicants to bank account of the company. Thus, the question of refunding the application money on the share not allotted does not arises. Okay, तो कंपनी को कुछ रिफंड करना ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ही है, सिर्फ ब्लॉक करे हुए हैं. तो वो जो पहले के टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम होता था कि कहीं ऐसी फ्रॉड कंपनीज भी आ जाती थी. वो क्या करे कि एप्लीकेशन ले तो लोग भी खुश होके इतनी सारी एप्लीकेशन दे दी और सबके पैसे वो लेके भाग जाए. तो अभी ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ही है और आपके अकाउंट आसबा हो चुके हैं. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आपके अमाउंट खाली ब्लॉक हुई है, कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुआ. अगर आप अपना बैंक बैलेंस देखोगे ना तो वो सेम ही रहता है कि अगर पर क्या हो जाता है, वो अमाउंट फ्रीज़ हो जाती है, आप वो अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हो. बाकी है तो आपके अकाउंट में, ताकि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो कोई आपके पैसे लेके नहीं गया, आपके पैसे उसी के पास है. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ अबाउट द ओपनिंग ऑफ एन बैंक अकाउंट. ओके, नेक्स्ट वन इट इज़ रिसीविंग शेयर एप्लीकेशंस. जो शेयर एप्लीकेशंस हमको रिसीव हुई है वो let's read about it and understand. Once the prospectus is sanctioned by SEBI, okay, अगर एक बार once the prospectus is being sanctioned by SEBI कि SEBI ने sanction कर दिया कि yes you can go for having your share capital issued, the company gives advertisement and newspaper and publicly announce the period during which the public offer will remain open for public subscription. जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो हमने पहले आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि प्रोस्पेक्टस इज़ इन्विटेशन टू द पब्लिक. उस पर पूरी डेट्स कि कौन सी डेट पे वो अकाउंट ओपन होने वाला है, कौन सी डेट पे ये क्लोज़ होगा, कौन सी डेट पे अप्रॉक्सीमेटली वो अलॉट होगा, कौन से डेट को रजिस्टर्ड होगा वो स्टॉक एक्सचेंजेस में. सो ये सारी चीज़ें, कितना अलॉट हो रहा है पर एप्लीकेशन, क्या अमाउंट होगा, कितने शेयर्स हैं कंपनी के, उसके क्या प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लिख के देते हैं प्रोस्पेक्टस में. ओके, एंड दैट इज़ पब्लिकली बीइंग इशूड टू एवरीवन सो दैट अ लेमैन कैन आल्सो हैव अ ग्लैंस ऑफ दिस कंपनी. ओके, जनरली दिस पीरियड इज़ 3 to 5 days. मोस्टली वो 3 to 5 डेज़ के पीरियड में वो सब ख़त्म हो जाता है. जनरली अभी तो 5 days भी मैंने बहुत कम में देखा है. जनरली वो लोग 3 दिन ही रखते हैं कि 3 दिन में एप्लीकेशन जितनी आए फटाफट से भर दो. ये भी पता है एक स्ट्रैटेजी है कि जितना ज़्यादा टाइम देते हैं ना, अपने ज़्यादा सोचते हैं. कम टाइम होता है ना, कैसे होता है 2 दिन की सेल होती है ना तो बहुत ज़्यादा वो चलती है. 2 महीने की सेल में इतना मज़ा नहीं आता है. 2 दिन में देखो मतलब भीड़ इतनी हो जाएगी, कांट इमेजिन. क्यों? क्योंकि हमको डर होता है कि ऑफ़र चली जाएगी. सो हियर ऑल्सो दे यूज़ द स्ट्रैटेजी मैनी टाइम्स. कहीं पे भी अपने जाते तो आज के लिए ही ऑफ़र है, आपके लिए ही ऑफ़र है. तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट दे यूज़ टू अट्रैक्ट पीपल. सो दीज आर 3 to 5 days का पीरियड होता है कि जितने टाइम में लोगों को वो इन्वाइट करते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर ये चीज़ भी MCQs में पूछे तो अपने को आनी चाहिए. All the investors willing to apply for the shares can obtain share application form from share brokers, sub brokers, stock exchanges or banks recognized by process of ASBA.
जनरली कहाँ जाएंगे, ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है, वन लाइन क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ जाओगे अगर तुमको शेयर्स लेना है। जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, तो ये लोग सबको अथॉरिटी मिली होती है कि आप ये शेयर के फॉर्म्स हैं वो आप लोगों को दे सकते हो। जैसे अगर आपको कभी भी शेयर लेना है तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू हैव योर डीमेट अकाउंट। बैंक से भी आजकल डीमेट अकाउंट खुलते हैं, ऐसे ब्रोकर्स होते हैं उनसे भी खुलते हैं, सब ब्रोकर्स भी होते हैं वो भी आपके डीमेट अकाउंट खुलवा देते हैं। तो पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद आपका फॉर्म जो होगा वो डीमेट अकाउंट के थ्रू एप्लीकेशन जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे मारवाड़ी है, बंसल है, एंजल ब्रोकिंग है, तो देयर आर thousands of brokers and sub brokers and bankers who are there to give you applications। आपके एप्लीकेशंस देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हैं कि जो आपके एप्लीकेशंस लेते हैं और आप अपने शेयर्स ले सकते हो। ओके, so all the investors willing to apply for the shares obtain share application forms from where question can be asked from where you will get your application form। so ये underline कर लो, share brokers, sub brokers, stock exchanges और bank recognized for the process of ASBA। तो ये चारों के नाम तुमको लिखने हैं। investor will deposit the duly filed in share application form along with the details, signature and copy of PAN card, permanent account number, to brokers who manages to deposit the application form to bank recognized for ASBA process so that the share application money can be blocked in the respective bank account of the applicants। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपका अमाउंट जो होता है वो ब्लॉक करवा देते हैं, वो आपके बिहाफ में एप्लीकेशन करते हैं उनके पास, क्योंकि वो अथॉरिटी होती है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर दे विल बी नीडिंग योर पैन कार्ड नंबर, राइट। पैन कार्ड इज़ समथिंग कि जिसके थ्रू आपकी वेल्थ जो है, आपके जो पैसे हैं वो मेज़र करे जाते हैं। तो कहीं अगर तुम जीएसटी भी फाइल करते हो तो तुम्हारा पहले पैन कार्ड लेंगे। अगर तुम कहीं पे शेयर्स एप्लीकेशन या कुछ भी कर रहे हो तो पहली चीज़ तुम्हारा, इवन यू कैन जस्ट गेट इट चेक्ड इफ़ यू गॉट योर शेयर्स और नॉट थ्रू पैन कार्ड नंबर। अगर सिर्फ तुमको पैन कार्ड नंबर से भी तुमको अगर पता चल गया, पैन कार्ड वो एप्लीकेशन लेते हैं ना, तो सिर्फ उसमें जो वेबसाइट होती है कि आपको चेक करना है कि आपको शेयर्स लगे हैं कि नहीं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो वो आप सिर्फ पैन कार्ड नंबर भी ऐड करते हो ना, तो उसके थ्रू यू कैन गेट इट डेड। तो पैन कार्ड जो है, परमानेंट अकाउंट नंबर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन यू वांट टू डील विद इट। तो अगर तुमको डीमेट अकाउंट खुलवाना है अपना, तो पहली चीज़ तुमको क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट यू गेट योर पैन कार्ड, राइट। तो उसके बाद आपका प्रोसीजर होगा और वो कनेक्ट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, जिसके थ्रू आपका जो अमाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, application can directly approach bank recognized for ASBA process and deposit the share application for further process of blocking the application amount। No checks are required for the process of ASBA। इसमें चेक की कोई ज़रूरत नहीं है आपका। अभी तो these days soon they will stop this offline procedure। अभी उनका प्लान यही है कि ऑनलाइन प्रोसीजर ही होगा कि आपका जो UPI ID होता है उसके थ्रू ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जस्ट टू प्रमोट द डिजिटल इंडिया और जस्ट टू स्टॉप द फ्रॉड्स विच आर being conducted these days। So to avoid such things they are going to switch into the online transactions। so UPI codes are really required। so you all are very young, you all know how to do all these transactions, so for you there is not going to be problem at all, but checks नहीं चलेंगे, तो that needs to be in the mind, okay। Under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any of the recognized branches. It's not branches of bank, it's branches of bank for ASBA process in which the applicant hold his bank account। ओके कि ये जो आपका एप्लीकेशन होगा वो क्या करते हैं, जैसे सपोज़ कि मेरा मारवाड़ी ब्रोकर है तो उनके पास मेरा अकाउंट है, तो जैसे पहले अभी तो मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, पर पहले जब ऑनलाइन नहीं हुआ करता था तो क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ जाना पड़ेगा, उसके वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर वो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे वो क्या करेंगे, वो लोग मेरा जो ASBA सपोर्टेड बैंक होगा, सपोज मेरा अकाउंट SBI में है, तो वो क्या करेंगे, जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो SBI को
दे के आएंगे, सो दैट माई अकाउंट and the shares which I want to purchase can be linked and by which my amount can be blocked. Okay, so under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any of the recognized branches of bank of ASBA process in which the applicants यानी कि मैं जिसको shares खरीदने हैं holds his bank account because the bank requires to block the application money in the अकाउंट, क्योंकि बैंक को उसका एप्लीकेशन जो मनी होगा मेरा वो उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो इसीलिए जो मेरा डीमेट अकाउंट होगा और मेरा जो बैंक अकाउंट होगा उसको दोनों को कनेक्ट करना ज़रूरी है। और वो कनेक्ट कौन करेगा, वो जो ब्रोकर होगा, सब ब्रोकर होगा कि जिसके पास मेरा डीमेट अकाउंट मैंने खुलवाया है, वो काम उसका रहेगा। वो जाएगा, मैं फॉर्म दे के आऊँगी, वो उसको बैंक को दे देगा। ठीक है। The process for the allotment is carried out after verifying the specimen of signature in the bank account and the demat account of the applicant. तो जो मैंने साइन किया है डीमेट अकाउंट में, जो मैंने साइन किया है बैंक अकाउंट में, और जो मैं वो फॉर्म देने गई उसमें जो मैंने साइन किया है, वो साइन सारे वेरीफाई होते हैं कि ये तीनों साइन एक ही बंदे के हैं और तभी वो आपका अप्रूव करेगा। अगर आपने उसमें इनिशियल किया है और उसमें फुल नेम वाला साइन किया है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। After reviewing the share application and blocking the application money, the bank informs the same to register of companies and only those applications of which the application amount is blocked are handed over to lead manager of the company by banks। और ये जो सारा होगा वो लीड मैनेजर्स जो अपॉइंट करे हैं कि ये प्रोसीजर पूरा स्मूथली चले, उसके लिए लीड मैनेजर्स अपॉइंट करे हैं, तो वो सारा अमाउंट उनको, ये सारी डिटेल्स उनको दी जाती है, सो दैट दे कैन नाउ स्टार्ट रनिंग द प्रोसीजर ऑफ देयर शेयर्स। Okay, so these are the 2 points that we have discussed today, and rest 2 points, that is classification of share allotment and share application and statement of share allotment. These 2 steps we will be doing into the next lecture. Today just revise these 2 points because they are really important. So very much when you want to learn this subject, you should be very much involved into the stock markets, and now you will be, whenever you will see the whenever you will see the newspaper or something which is related to stocks, now slowly after learning this subject slowly तुमको आइडिया आएगा कि ये एक्चुअली क्या है। हम लोग को कई बार नहीं पता होते टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स नहीं पता होते, बट बिकॉज ऑफ दैट slowly gradually you start learning. Okay, so up till this we are keeping everyone, make sure again I'm recalling that part 2, that is SP stands for 60 marks, इसमें से तुमको 60 मार्क्स आएंगे। ओके, और जब परसेंटेज कैलकुलेट होता है ना लास्ट में, तो ये सब्जेक्ट भी कैलकुलेट होता है, सो डोंट फॉरगेट दैट। एंड इसमें तुम छोटा सा प्रिसाइज आंसर्स भी लिखोगे, यू डोंट नीड टू ये सब्जेक्ट की स्पेशलिटी यही है कि इस सब्जेक्ट में तुमको भर भर के नहीं लिखना है, जितना कंटेंट है तुम उतना लिखो, यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो लेसन 1 जो है 1 MCQ, 1 VSQ, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, एक 3 मार्क का, एक 4 मार्क का, ऐसे आएगा। अच्छे से रिवाइज करना, वी विल ट्राई कि तुम्हारा सिलेबस ये दिवाली के पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, एंड दिस टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू। Alright, so these are the things that you need to keep in mind while you do it. So this time fair books are going to be important, that you have to make the fair book and separate fair book this time. Last time I told you to make a combined fair book only, that half of partition you will be doing, but this time you need to make a separate fair book for SP different and CC different. Okay, क्योंकि जो फिर रिविज़न होगा, हम लोग लास्ट में रिविज़न करेंगे, जो पेपर्स लिखेंगे या कुछ भी प्रैक्टिस के लिए मैं तुमको दूंगी, तो सेम थिंग इज़ टू बी रिटन इन द सेम बुक इटसेल्फ। सो मेक श्योर कि तुम दो सेपरेट बुक्स बनाओ, और इस बार फेयर बुक चेकिंग सीरियसली होने वाला है। सो लास्ट टाइम जो भी था थोड़ा 11th स्टैंडर्ड था, ऑलमोस्ट तुमने सब ऑनलाइन पढ़ा था, तुमने स्कूल देखी ही नहीं थी 11th 12th की, बट इस बार यू आर प्रीटी अवेयर ऑफ ऑल द टीचर्स, यू आर प्रीटी अवेयर ऑफ द सिस्टम विच इज़ बीइंग फॉलोड। सो दिस टाइम द स्ट्रिक्टली एवरीथिंग, ऑल द प्रोटोकॉल्स आर टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, सो मेक श्योर कि वो फॉलो करो। नाउ कम बैक टू द एक्सरसाइज पे आ जाओ कि जो भी अभी क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स विच वी हैव डन टुडे, वो सारे तुमको कर लेने हैं। तो अभी से ही तुम्हारा वर्क ताकि स्टार्ट हो जाए। जैसे आई रीड इट, आई स्टार्ट फ्रॉम आंसर 2। ओके, जो लास्ट आंसर है आंसर 2, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं।
First is state the which is being asked in 1 marks. State the names of share issue. Okay, के नेम कौन से शेयर्स इशू हो सकते हैं, 4 नेम थे, तुम याद करो, लिखो. अ कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ द विच इंटरमीडिएटरीज फॉर पब्लिक इशू. दिस ऑल्सो आई हैव रिमाइंडेड यू व्हेन वी वर डूइंग. सो कौन से इंटरमीडिएटरीज है, मैंने तुमको बोला भी था कि आएगा, एंड इट इज़ देयर, सो यू हैव टू राइट इट जस्ट नाउ. व्हाट इज़ ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल की मैंने डेफिनेशन बोली थी कि उसको अंडरलाइन कर दो. सो दैट इज़ टू बी रिटन. ओके, पहले एक बार देख देख के लिखो, ट्राई करो लर्न करने की. अभी से ट्राई करोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. कई बार हमको लगता है कि है ना, हम लोग मैम अभी कर देते तो बाद में तो भूल जाते हैं. दैट इज़ ऑब्वियस. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन फॉरगेट. बट क्या होगा ना कि अगर तुमने अच्छे से अभी करोगे ना, तो जब बाद में रिवाइज़ करना है तो तुमको पूरा थॉरोली रिवाइज़ नहीं करना है. तुम थोड़ा भी रिवाइज़ करोगे ना, तुमको पूरा याद आ जाएगा, तो कोई मेहनत तुम्हारी वेस्ट नहीं जाने वाली है. सो अभी से ही स्टार्ट कर दो. ओके, व्हाट इज़ लेटर ऑफ रेनंसिएशन. तो वो तो अभी आया नहीं है, तो अप टिल क्वेश्चन 1, 2, 3 करना है. आफ्टरवर्ड्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. ये 2 मार्क्स में आएंगे. उसमें लिखा है व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस, जो तुमको आना चाहिए. व्हाट इज़ इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो नहीं आएगा तो चलेगा, एक ही क्वेश्चन है इसका. ओके, आफ्टरवर्ड्स सो क्वेश्चन 2 में से 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 में से एक ही. उसके बाद क्वेश्चन 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और टू द पॉइंट आंसर करो. हाउ आर शेयर एप्लीकेशन क्लासिफाइड. शेयर एप्लीकेशन कैसे क्लासिफाइड है वो भी हमने देखे थे, तो दैट यू हैव टू डू इट. स्टेट द लीगल रिस्ट्रिक्शन और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो हमारा नहीं हुआ तो ये बाकी रखेंगे. आंसर द फॉलोइंग. सो 4th क्वेश्चन में से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुमको करना रहेगा. ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. अभी इन डिटेल मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन होगा या 4 मार्क का आएगा. 5 मार्क में सारे लेटर्स आते हैं, तो 4 मार्क के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे. सो सेक्शन F होता है, दैट इज़ फॉर यू नो ऑल द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑल द लेटर्स जो CC में तुम सीखोगे. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन. तो हमने 2 पॉइंट्स करे हैं, तो मेक श्योर तुम 2 पॉइंट्स अभी रिवाइज कर लो, लर्न करके लिख सकते हो. सो फर्स्ट का सिर्फ आधा क्वेश्चन. ओके, सो इतना सब चीज़ खाली हो जानी चाहिए अपनी फेयर बुक में. ओके, so up till this we are keeping everybody. I hope you all are doing well and you are taking care of yourselves, and please continue with the online studies. The only thing that I want to ask you again and again is that don't underestimate your studies and don't compromise your studies in this situation. Just make sure that your knowledge should be gained in any ways. Okay, so here we are ending. Hope to see you in the next class. Thank you everyone. Have a nice day ahead and take care of yourselves.